ठीक है। अच्छा, अब यहाँ से जो है हमारा वो कोर्स प्रॉपरली स्टार्ट होगा। यहाँ तक जो थे दैट वाज द इंट्रोडक्टरी टर्म, दैट वाज द बेसिक्स ऑफ द इकोनॉमिक्स। ओके, नाउ सी the cash flow diagram, that is the graphical representation of the revenue and expenses. Okay, if graphically you represent that how much amount is outflowing and how much amount is inflowing, that graphical representation is called the cash flow diagram. Okay, a cash flow diagram is an indispensable tool for clarifying and visualizing. That is just a visualization, that is just a graphical representation of the amount which is coming into the organization and which is going out from the organization. Okay, so see, for example, at the start of a company, at the start of a business, at the start of month, at the beginning of the year, first you will invest some amount, that is 17,000 for example, या that is the present amount, just generalize कर दें उसको, suppose ये P amount है which is invested at the start of the period. Okay, now suppose this is the end of one period, this is the end of second period, this is the end of third period, this is the end of fourth period. Suppose fourth period के बाद आप एनालिसिस करते हैं कि अब आपके पास कितना अमाउंट है। समझ आ रहे? See, at the start you have invested this amount, so at the end of first period, second period, third period and fourth period you will get some revenue, and at the end you find out the future amount. Okay, या इसका मतलब ये है, suppose you have invested $17,000 for 4 periods, that period will be either month or year, इसके साथ confuse ना हो. Okay, suppose you have invested $17,000 for 4 periods at a rate of 1% per period. So at the end of 4 periods you will have $17,690. Okay, now जो below हैं these are the expenses जब arrow down हो, और जब arrow ऊपर की तरफ हो these are the revenue, these are the revenue and these are the expenses, and the difference between revenue minus expenses, that will be the net profit. Okay, तो ये एक ग्राफिकल विजुअलाइजेशन होता है, आपको पता चल जाता है कि जो बिजनेस है, जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है. ठीक है, तो सी कैश फ्लो इज द sum of money recorded as a receipts or disbursement in a project financial record. Okay, also you can prepare the cash flow diagram for a specific project. Suppose you have started a project, so just draw a horizontal line. Initially, how much you have invested. At the end of first period, how much you have invested. At the end of second year, how much you have invested. At the end of third year, how much you have invested. Mean at each year, suppose you are investing, and for example, at first year, how much you have get back, कितना आपने जो है revenue की है, obtain की है. ठीक है, तो ऊपर की तरफ जो एरो होगा that will be representing revenue, और नीचे की तरफ जो एरो होगा that will be represent expenses for the given period. Okay, and see the size of the arrow will represent the quantity, magnitude. ठीक है, so a cash flow diagram present the flow of cash as arrows on timeline scale to the magnitude of the cash flow. Okay, expenses are represented down arrows and receipts or revenue are represented by up arrows. Okay, now see, for example, a mechanical device will cost $20,000. So when you purchase
a device, when you purchase an equipment, so उस टाइम आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर दी, कितना आपने एक्सपेंसेस कर दी, $20,000. And see, the lifetime of the equipment is 5 years. And see, the maintenance per year will be $1,000, and the device will give you 5,000 per year. अब देखें ना, ये पर ईयर है ना, हर साल आपको 5,000 रिवेन्यू दे रहा है, 1,000 उस पे मेंटेनेंस खर्चा आ रहा है या ऑपरेशन कॉस्ट आ रहा है, तो हर साल आपको नेट रिवेन्यू कितना मिलेगा, 4,000. तो देखें, एट द स्टार्ट यू हैव इन्वेस्टेड 20,000, एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर 4,000 आपको प्रॉफिट आ गया, एट द एंड ऑफ सेकंड ईयर 4,000 प्रॉफिट आ गया, एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर 4,000 प्रॉफिट आ गया, एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर 4,000 प्रॉफिट आ गया. एंड सी द सल्वेज वैल्यू इज 7,000. मीन मशीन का जो लाइफ है वो 5 ईयर है ना, 5 साल बाद 7,000 मशीन की वैल्यू होगी, और 5th ईयर के लिए 4,000 उससे वो रिवेन्यू होगा ना. तो एट द एंड ऑफ 5th ईयर कितना आपको मिलेगा, 11,000. समझ आ रहा है इसकी? सो ये जो है, दीज आर द टोटल रिवेन्यू एंड दिस इज योर एक्सपेंसेस. सो आप देखिए 4, 4, 4, 4, 16 एंड 11, 27,000. मीन आपने टोटल कितना रिवेन्यू ऑब्टेन की है, 27,000, और इन्वेस्ट आपने कितनी की थी, 20,000. सो आपका नेट प्रॉफिट कितना होगा, 7,000. समझ आ गया? That is a type of representation, graphical visualization. इसको कैश फ्लो डायग्राम कहते हैं. क्लियर हो गया ये? सर ये 4,000 किस तरह आएगा, जरा दोबारा से दिखाएं इसको. See, for first year, mean at the start of the equipment, we have invested $20,000. Now, after 1 year, देखिए ना, 1,000 is the maintenance cost. So actually इस तरह होना चाहिए कि आप नीचे एक एरो ड्रा कर लें छोटा सा, which will represent $1,000 mean maintenance. और at the end of first year 5,000 आपको रिवेन्यू आ गया. तो देखिए ना, 5,000 एरो ऊपर है और 1,000 नीचे है, तो इनका सम क्या होगा, 4,000 ऊपर. जिस तरह हम वेक्टर को ऐड करते थे ना, 5,000 ये है, ये 1,000 है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, 4,000. मतलब ये कि एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर you get 4,000 net revenue, at the end of second year for that year again you get 4,000, for third year, for fourth year, and for fifth year. Yes sir, clear. 4,000 is revenue and 7,000 is the salvage value, so the total revenue is 11,000. ठीक है? Yes sir. So that is just the cash inflow में क्या होता है ना, mean graphical representation of cash inflow and cash outflow, that is called the cash flow diagram. तो cash inflow में हमारे पास revenues होते हैं, receipts हैं, incomes हैं, savings हैं, which is generated from the project, उसका plus sign होगा, and the arrow will be upward. And when we have the cash outflow, disbursement, expenses, taxes, okay, that is called the flow out, उसका माइनस साइन होगा या डाउन साइड एरो होगा. एंड सी नेट कैश फ्लो, द टोटल कैश इनफ्लो माइनस टोटल कैश आउटफ्लो. ओके, मीन रेवेन्यू माइनस डिसबर्समेंट, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस. ओके, एंड एट द एंड ऑफ द पीरियड we have to find out कि total period आपने या assume करना है total time period या one period, 1 month या 1 year. Okay, this is called the cash flow diagram. In the cost and benefits of engineering project over time are summarized on a cash flow diagram.
ओके, सी साइज, साइन एंड टाइमिंग, तीन चीजें होती है। फर्स्ट आपने क्या करना है, जस्ट एक लाइन ड्रॉ कर दें। अब सपोज आप 10 साल के लिए ड्रॉ करते हैं ना, 10 साल के लिए, तो इसको 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Just draw a line and divide it into 10 equal parts. So one part will represent what? That will represent one period, which is 1 year. Okay, so at the start of the project, at the start of the company, at the start of the equipment, at the start of the business, कितना आपने इन्वेस्ट किया है। सपोज 10,000 आपने इन्वेस्ट किए है ना, तो उस हिसाब से आप एरो ड्रॉ कर ले। फॉर एग्जाम्पल 2000 के लिए हम 1 सेंटीमीटर ड्रॉ करेंगे, तो इसके लिए 5 सेंटीमीटर आप ड्रॉ कर ले। सी, लेंथ ऑफ द एरो विल रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ मनी। ओके, तो यहां पे ये जो 5 सेंटीमीटर अगर आपने ड्रॉ कर दी ना, सपोज दैट इज रिप्रेजेंटिंग 10,000 एक्सपेंसेस। नाउ एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सपोज 2000 जो है टैक्सेस आ गए, या सैलरीज आ गए, या मेंटेनेंस आ गए, या ऑपरेशन कास्ट आ गया, तो 1 सेंटीमीटर एरो ड्रॉ कर लें, बिकॉज दैट इज 2000। और एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर, सपोज 5000 आपको रिवेन्यू मिल गया, तो 2.5 इंच ऊपर की तरफ एरो ड्रॉ कर ले। समझ आ रहा है इसकी? तो नीचे जो है दैट इज द एक्सपेंसेस, ऊपर जो है दैट इज द रिवेन्यू। सिमिलरली फॉर नेक्स्ट ईयर, सपोज 4000 खर्चा हो गया, तो 2 सेंटीमीटर एरो ड्रॉ कर लें। सपोज नेक्स्ट ईयर आपको 8000 रिवेन्यू मिल गई, तो 4 सेंटीमीटर एरो ऊपर की तरफ ड्रॉ कर ले। तो हर साल के लिए आपने इस तरह करना है। That is called the cash flow diagram. Remember, स्केल का, साइज का, इसका ख्याल रखना है। ठीक है, क्लियर? Yes, sir. जी, Sir, da line chikam mung wahu kana da expenses da para o revenue da para. No sir da mung chiyobal na minus ko chikam net line rashi no mung aga direct ni shuwali. अब प्रीवियस एग्जांपल की दास वो का ना, अब्दुल हसीब ने जो क्वेश्चन कर दी, ये 4000 किस तरह रहे, आप इसको सम कर लेना। जिस तरह सपोज फर्स्ट ईयर 2000 एक्सपेंसेस हो गए, 5000 जो है रिवेन्यू आ गया, तो यहां पे इसको मीन एक एरो ड्रा कर ले, नेट उसका क्या आएगा, 3000 आएगा ना, तो 1.5 सेंटीमीटर का एक ही एरो ड्रा कर ले, वो भी कर सकते हैं। Yes sir, ठीक है? ठीक है sir, बस ये confusion थी. 8 are the expenses and receipts. ठीक है, सो जो फर्स्ट टाइम पे आप जो इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो एक्सपेंसेस होते हैं, दैट इज कॉल्ड द फर्स्ट कास्ट। फिर बीच में जो अकाउंटिंग हम करते हैं ना एक्सपेंसेस के, वो ऑपरेशन कास्ट होता है, मेंटेनेंस कास्ट होता है, डिप्रिशिएशन कास्ट होता है, ठीक है, लेबर कास्ट होता है, यूटिलिटी कास्ट होते हैं, ये एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ठीक है, एंड एट द एंड अगर उस मशीन को या इक्विपमेंट को सपोज आप सेल कर देना मार्केट में, तो उससे जो अमाउंट मिलेगा दैट विल बी द सेल्विक वैल्यू, वो ऊपर की तरफ होगा ना, वो रिवेन्यू आ जाएगा। ठीक है, so in cash flow diagram the end of period T is the same as the beginning of T+1। ये पॉइंट याद रखें। सपोज अगर ये डायग्राम है ना, ये फर्स्ट पीरियड है, so end of first period is the start of second period। end of first period is the start of second period। okay, so the end of period T, suppose अगर ये end of period T है, so that is the start of period T+1। next period का ये start है। ठीक है, अब देखिए फॉर एग्जांपल जी, मतलब क्या है सर इसका?
मतलब इसका ये है कि इसी कुछ एक्सपेंसेस इस तरह होते हैं ना कि वो हम पीरियड के स्टार्ट में पे करते हैं, और कुछ एक्सपेंसेस इस तरह होते हैं कि उसको हम पीरियड की एंड में पे करते हैं। समझ आ रहा है इस चीज की? जी सर, ठीक है सर। अक्सर ये हॉस्टल वाले क्या करते हैं, हॉस्टल रेंट, जो प्राइवेट हॉस्टल्स होते हैं ना, वो एट द स्टार्ट ऑफ द पीरियड वो पहले से वो रेंट लेते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट पीरियड का एंड होता है और दूसरी पीरियड का स्टार्ट होता है। तो दूसरी पीरियड की जो एक्सपेंसेस हैं वो आप फर्स्ट पीरियड की एंड में काउंट करते हैं। समझ आ रहे हैं? जी सर, बिल्कुल। पॉइंट बहुत क्रिटिकल है, इसको समझना चाहिए कि द एंड ऑफ फर्स्ट पीरियड इज इक्वल टू द बिगिनिंग ऑफ सेकंड पीरियड। तो सेकंड पीरियड की जो एक्सपेंसेस हैं अगर वो आप स्टार्ट में पे करते हैं तो उसको आपने फर्स्ट पीरियड की एंड में काउंट करने हैं, ठीक है। सर अगर हम एज ए होल मतलब अगर 4 सालों के बाद हम कैलकुलेशन कर ले तो इसमें तो ये प्रोसेस शामिल नहीं होगा ना? नहीं कर सकते। मनी हैज टाइम वैल्यू, प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था। नहीं ठीक सर, है, अगर मतलब सालों के अलावा अगर हम 4 महीने के बाद ये एज ए होल, जिस तरह के प्रीवियस लेक्चर में आपने बताया, पिछले स्लाइड में आपने बताया कि मतलब 4 महीने के बाद ही हम कर ले, एक नहीं महीने में कर हम सकते, नहीं, इसका नहीं। इकोनॉमिक्स में ही नहीं कर सकते। इसमें हर पीरियड की एंड में आपने करना होगा, बिकॉज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम मनी की वैल्यू चेंज होती है, अच्छा ठीक है। थैंक यू। इन्फ्लेशन आ सकता है, डिफ्लेशन आ सकता है, या उस मनी को आप इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको प्रॉफिट मिल सकता है। सो टाइम, मनी हैज टाइम वैल्यू हैज मनी, या मनी हैज टाइम वैल्यू, ये सेंटेंस है। तो इट मस्ट बी इनकॉर्पोरेटेड एट द एंड ऑफ ईच एंड एवरी पीरियड, ठीक है सर। ठीक है। So before evaluating the economic merits of an investment, see, इससे आपको पता चल जाता है कि जो इन्वेस्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो कंपनी है, उससे कितना जो है, या ये प्रॉफिट में जा रहा है या लॉस में जा रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द इकोनॉमिक इवैल्यूएशन ऑफ एन इन्वेस्टमेंट। सो सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू प्रिपेयर द कैश फ्लो डायग्राम। So let's prepare for this example. For example, $10,000 was invested, okay, and for example, 5,310 revenue will be generated for each year for 5 years, and at the end, the market recovery value will be $2,000 at the end of year 5. And the annual expenses is $3,000 at the end of each year. Okay, that are the operating and maintenance expenses. Now draw the cash flow diagram. So just draw a line, divide it into 5 equal parts: 1, 2, 3, 4 and 5. Suppose यहाँ तक आ रहा है, इस साइड को छोड़ दे। So at the start you have invested $10,000. Now at the end of first year, 3,000 was the expenses for first year, and at the end of first year, 5,310 was the revenue. Similar is for the second, for third, for fourth, and C for fifth. For fifth year, the expenses was that 3,000, and at the end of fifth year, 5,310 is the revenue, 2,000 is the salvage value of the investment, so that will be 7,310. ठीक है, तो आप देखिए इस तरह डायग्राम बनेगा। At the start invested 10,000, at the start revenue was 0, yeah, that is the 0 period, that is the start of the investment. At the end of first period, yeah, at the start of second period, up to here 3,000 was expenses and this much was the revenue. Similarly for second, third, fourth, and for fifth year, at the end of fifth year, this was the expenses, this was the revenue,
in 2000 was the book value. Now sum all these value and sum all these value and take the difference. So आपको पता चल जाएगा कि नेट प्रॉफिट 5 साल में पेवर प्रॉफिट कितनी हुई है। ठीक है, तो ये एक विजुअलाइजेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है।